Hello everyone. In the last lecture we discussed what is a transaction, different type of transaction and properties of a transaction. In this lecture we discuss what is schedule, what is the use of a schedule, different types of schedules which can be used in DBMS. Okay, now we discuss what is a schedule. Before discussing a schedule, we know what is the transaction. Transaction, it is a set of instruction or a list of actions which can be perform various operations on a database. When multiple transactions are run concurrently, when there need a sequence to which the operation are performed, because at a time only one operation can perform. जब भी हम मल्टीपल ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करते हैं, एक ट्रांजेक्शन में मल्टीपल ऑपरेशंस हो सकते हैं, लेकिन उन ऑपरेशंस का सीक्वेंस क्या होगा, इस सीक्वेंस को जस्टिफाई करना ही शेड्यूल है. इट मीन्स the sequence of operation is known as a schedule. The sequence of operation is known as a schedule. Now we discuss types of a schedule in a DBMS. Basically, there are two types of a schedule: serial and non-serial schedule. Again, serial schedule is a simple schedule. Non-serial schedule can be divided into again three parts: strict non-serial schedule, cascadeless non-serial schedule, and recoverable non-serial schedule. Now we discuss serial schedule. Serial schedule, it is a transaction. In a transaction does not start execution until the currently running transaction is finished execution. इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि ट्रांजेक्शन के अंदर सपोज n ऑपरेशन हैं, अगर वो n ऑपरेशन सारे परफॉर्म हो जाएंगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन की, उसके बाद ही किसी दूसरे ट्रांजेक्शन का कोई दूसरा ऑपरेशन एंटरटेन किया जाएगा. This type of execution of a transaction is also known as non-interleaved execution. Non-interleaved execution का मतलब यही है, एक ट्रांजेक्शन T1 अगर रनिंग स्टेट में है तो T1 के सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, उसके बाद ही T2 का कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा. Serial schedule example. In next example we R refer for read operation and W refer for write operation. The transaction T2 does not start execution until the transaction T1 is finished in a serial execution. इस एग्जाम्पल में T1 is the transaction first, T2 is the transaction second. In a T1 transaction, read operation on A data, read operation on a B data, write operation on a data. T2 के किसी भी ऑपरेशन के स्टार्ट होने से पहले T1 को कमिट करना, कमिट का मतलब ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना ज़रूरी है, उसके बाद ही T2 का कोई ऑपरेशन स्टार्ट होगा. इस टाइप की किसी भी ट्रांजेक्शन को या इस टाइप के एग्जीक्यूशन को हम सीरियल एग्जीक्यूशन कहते हैं. स्ट्रिक्ट शेड्यूल. strict schedule basically it is the type of a non-serial schedule. Non-serial schedule it means बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है. स्ट्रिक्ट शेड्यूल इफ फॉर एनी ट्रांजेक्शन T1 T2, सपोज तो ट्रांजेक्शन है आपके पास T1 और T2, और T1 का कोई राइट ऑपरेशन चल रहा है और कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है T2 का कोई दूसरा ऑपरेशन, रीड और राइट ऑपरेशन आता है, देन हमें T1 के उस ऑपरेशन को कमिट करना पड़ेगा जो पहले चल रहा था, उसके बाद ही हम T2 के ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएंगे या एग्जीक्यूशन स्टेट में लेके आ पाएंगे. स्ट्रिक्ट शेड्यूल का अब हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. सपोज देयर इज ए टू ट्रांजेक्शन TA and TB, then write operation of a transaction TA precede the read or write operation of TB. इसका मतलब TA का राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन TB का कोई ऑपरेशन अकर हो जाएगा, रीड या राइट कुछ भी हो सकता है, तो हमें सबसे पहले कमिट और अबॉर्ट करना पड़ेगा TA ट्रांजेक्शन को, उसके बाद ही हम रीड और राइट ऑपरेशन TB का सक्सेस करेंगे. देखो TA ट्रांजेक्शन A, TB ट्रांजेक्शन ऑन B. अनदर ट्रांजेक्शन TB, सबसे पहले हमने रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया है X पे, उसके बाद रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया है Y पे. अब देखो यहाँ X डेटा पे परफॉर्मेंस हो रही है, यहाँ Y डेटा पे परफॉर्मेंस हो रही है, ये तो पॉसिबल है. उसके बाद हमने राइट किया है X को, उसके बाद हमने इधर किया राइट को. हम X को तब तक रीड नहीं कर सकते जब तक हम TA की कमिट नहीं कर लें. अगर X पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उससे पहले TA को कमिट करना ज़रूरी है, उसके बाद हम रीड ऑपरेशन कर सकते हैं X पे, उसके बाद हम कमिट करेंगे. दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए स्ट्रिक्ट शेड्यूल एग्जांपल. नाउ वी
discuss cascadeless schedule. Again, it is a type of a non-serial schedule. Non-serial schedule है तो उसकी basic fundamental यही है cascade schedule में. If a transaction is going to perform a read operation, अगर वो read operation perform करना चाहता है किसी भी वैल्यू पे, तो उसे वेट करना पड़ेगा जब तक कि ट्रांजेक्शन उस वैल्यू पे अगर राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो कमिट नहीं हो. इसका मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और कोई दूसरा ट्रांजेक्शन उसको एक्सेस करना चाहता है उस वैल्यू को, तो उसे तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि उस पर राइट ऑपरेशन जो परफॉर्म हुआ है उसकी वैल्यू सेव नहीं हो जाए. कमिट का मतलब यहाँ परमानेंटली सेव से है. Now we discuss example of a cascadeless schedule example. For example, let's say we have two transactions. Suppose two transaction TA and TBA. TB is going to read the value of X after the WX of TA. Then TB has to wait for the commit operation of a transaction TA before it reads the X. It means कोई भी वैल्यू अपलोड करने से पहले या अपडेट करने से पहले उसे वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो कमिट नहीं हो जाता है. कैस्केड शेड्यूल का एग्जांपल हम बिल्कुल बेसिक लेते हैं. TA is the transaction, TB is the another transaction. Suppose read operation on X values, write operation on X values. Now you operate write value on X. Write value of X तभी परफॉर्म होगा, उसके पहले कमिट परफॉर्म होगा. कमिट परफॉर्म होने के बाद ही रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है. इस टाइप के शेड्यूल को हम कैस्केडलेस शेड्यूल भी कहते हैं. Next we discuss recoverable schedule. Recoverable schedule is also belong from a category of a non-serial schedule. Recoverable schedule, if a transaction is reading a value which has been updated by some other transaction, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन की वैल्यू रीडिंग हो रही है, उसके बाद अगर अपडेट कर रहा है किसी अदर ट्रांजेक्शन में, तो ये ट्रांजेक्शन कमिट होगा, उसके बाद ही हम उस वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं. It means if a transaction is reading a value which has been updated by some other transaction, then this transaction can commit only after the commit of other transaction which is updating a value. Next we take an example of a recoverable schedule. Recoverable schedule, देखो recoverable schedule का मतलब, रिकवरेबल का यहाँ जो मीनिंग है वो ये है जैसे सिस्टम में कोई फेलियर हो गया या डेटाबेस एट रैंडम सडनली क्रैश हो गया. तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई वैल्यू को अपडेट किया है तो हम उस वैल्यू को अब कमिट तो नहीं कर पाए क्योंकि डेटाबेस बीच में करप्ट हो गया या क्रैश हो गया, तो हमें वो वैल्यू सेव करने के लिए लास्ट कमिट पे जाना पड़ेगा. इसलिए हम रिकवरेबल शेड्यूल को डिस्कस करते हैं. Here TB is performing a read operation on X after the TA has made change X using WX, so TB can only commit after the commit operation of a TA. So हम बेस्ट एग्जाम्पल लेके समझेंगे. हमने दो ट्रांजेक्शन परफॉर्म कराए हैं, TA ट्रांजेक्शन एंड TB ट्रांजेक्शन. सबसे पहले हमने रीड ऑपरेशन एक्स डेटा के ऊपर परफॉर्म कराया, उसी के बाद राइट ऑपरेशन एक्स डेटा पे परफॉर्म कराया. अब रीड ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया एक्स पे ट्रांजेक्शन सेकेंड ने, राइट ऑपरेशन परफॉर्म कराया, रीड ऑपरेशन परफॉर्म कराया, लेकिन TB के कमिट होने से पहले TA का कमिट होना ज़रूरी है. अगर TB पहले कमिट हो जाएगा तो ये नॉन रिकवरेबल शेड्यूल एग्जाम्पल आ जाएगा. तो रिकवरेबल शेड्यूल है तो सबसे पहले जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म कराए हैं जिस भी ट्रांजेक्शन के, पहले आप दूसरे ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हो, लेकिन कमिट पहले कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ वो सबसे पहले कमिट होगा. आफ्टर दैट जो लास्ट में जिसने ऑपरेशन परफॉर्म कराया है वो लास्ट में कमिट होगा. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ serializability and what is the use of a serializability. For more examples of a schedule, we can visit or follow these references. Thanking you.